Okay, so today we will study the deadlock in detail, and we will study about deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock ignorance method, and and we will have some detailing like how we can do the deadlock prevention. In the previous class also we have a glimpse about the deadlock prevention, and we had studied about topics like how we can prevent our system so that deadlock mutual exclusion will not occur in our system. And we also seen that how we can avoid the how we can prevent our system to not have a hold and wait condition. And today we will study about how we can prevent non-preemption and circular wait, and along with that we will study about what are the various mechanism by which we can have in a deadlock situation. And if we will have a time, then we will look into the deadlock avoidance also, and in which we will have a detail about deadlock avoidance. So I'm waiting for students to join. Let them join first. Okay. Okay. The scheduled time is 11:30. 2 minutes more to students to have here. Already all the relevant documents, PPT, notes is shared in the Google Classroom. Students can check there also. The digital pad is working fine. Okay, Rajiv Kumar is joining. Okay, Manisha Kumar is joining. Hmm. Okay, Manisha, are you there? Yes, sir. Good Okay, afternoon, sir. good afternoon. And please kindly inform your classmates that class is going on. Join Okay, it as sir. soon as possible. Okay, Shubham Kumar is joining. Rishikesh Chandra, Simran Kumari, Prem Prakash Gupta.
Ashish Kumar Roy. Okay, student, as you know that class scheduled classes start from 1:35. But in the meantime, if you have any kind of query related with session which we have completed, then you can put your query and I will try to solve it. Ayush Bharti is joining. Smriti Rupam is joining. Sumit Kumar is joining. Suraj Priyadarshi is joining. Okay. Yes, student, if you have any kind of query, then you can ask. Aishwarya is joining. Muskan Kumari and Bipin Kumar is joining. Okay. Till now, 15 students have joined. So, what we were studying in previous class, student, can anyone brief me? Suesh 14 is joining. Can anyone brief me that what we were studying in the previous class? Manish Kumar is joining. Only few seconds we left to start our classes. Okay, it is 1:35, so let's start today's session. So, in our previous class, we have completed one of the topic related with deadlock strategies to handle the deadlock. And in the previous class, we was studied about the deadlock prevention. Okay, somebody is trying to join. Ankit Raj is joining. Okay. सो हम लोगों ने डेडलॉक प्रिवेंशन को देखा था. हमने क्या देखा था डेडलॉक प्रिवेंशन में? प्रिवेंट डेडलॉक by restraining request made to ensure that at least one of the four condition cannot occur. Okay, I think someone is joining. Aditya Adi is joining. Okay. सो हमारे ये जो फोर डेडलॉक कंडीशन थे, ये क्या क्या थे हमारे? सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. फिर हमारा क्या था? होल्ड एंड वेट. नेक्स्ट हमारा क्या था? नो प्रियम्पशन. नो प्रियम्पशन. और लास्ट हमारा क्या था? सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट. Okay, somebody is joining, trying to join. Ramakrishna is joining. Okay. Now, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में देखा था कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इफ वी विल मेक ऑल द रिसोर्स शेयरेबल. शेयरेबल अगर हम कर देंगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन खत्म हो जाएगा. बट वी हैव सीन दैट आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू
Anshu Kumar is joining. Priya Suman is joining. ओके सो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में देखा था और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में कैसे हम कर सकते हैं बाय मेकिंग ईच एंड एवरी रिसोर्स इन आवर सिस्टम इन शेयर्ड मोड but as we have seen the example also that it is not possible. Hold and wait में हमने क्या देखा था कि we are enforcing that if a process wants to enter in our system then all the requirement related with that process is already satisfied. तब हम क्या करेंगे किसी प्रोसेस को परमिट करेंगे एंटर करने के लिए ताकि आपका वो ये जो कंडीशन था होल्ड कर रहा है और दूसरे से वो कुछ रिसोर्स का डिमांड कर रहा है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा. आशीष कुमार इज ज्वाइनिंग. ओके सो वाया दिस वी कैन ब्रेक दैट. एंड एक और मैकेनिज्म हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो प्रोसेस होगा प्रोसेस के पास जितना रिसोर्स होगा उसके साथ वो प्रोसीड करेगा और उसके बाद प्रोसीड करने के बाद जैसे ही वो क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा फॉर एडिशनल रिसोर्स तो हम क्या करेंगे उसको सिस्टम से प्रिम्प्ट कर देंगे. इट मीन प्रिम्प्ट नहीं करेंगे उसको सिस्टम में रहने देंगे बट उसके पास जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ था इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा रिसोर्स को उसको नीड ना हो इन फ्यूचर में तो होल्ड किया हुआ रिसोर्स सारा उससे रिमूव करवा लेंगे. ठीक है तो इस तरह से अगर दूसरे का रिक्वायरमेंट होगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म. इट मीन्स इसमें जो होल्ड का कंडीशन था उसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं. ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा नो प्रियम्पशन को हम कैसे ब्रेक करेंगे. सिंपली हम कह देंगे कि नाउ यू कैन टेक द रिसोर्स फोर्सफुली. ठीक है नाउ यू कैन टेक द रिसोर्स फोर्सफुली तो प्रियम्पशन ब्रेक हो जाएगा. सर्कुलर वेट में हम क्या करेंगे सर्कुलर वेट में अब हम ये रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि आइदर आपका जो प्रोसेस डिमांड कर रहा है एडिशनल रिसोर्स के लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो आइदर वो हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. बट ऐसा नहीं होगा कि मान लिया जाए कि अगर P1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का क्या मतलब है कि P1 अब उसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जो कि उससे हायर ऑर्डर के प्रोसेस के पास था जैसे P2 P3 P4. P2 किससे रिक्वेस्ट कर सकता है लाइक P3 P4 उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है बट P2 जो है वो P1 से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है. तो हम क्या करेंगे सर्कुलर वेट का जो कंडीशन था उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आइदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करे या फिर डिक्रीजिंग में कर रहा है. ठीक है ऐसा नहीं हो कि इंक्रीजिंग में ही अगर हो रहा है तो वहां डिक्रीजिंग में भी करे. नहीं अगर इंक्रीजिंग में है तो ओनली इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग आपका इस तरह से होगा. दिस इज द सिनेरियो फॉर डिक्रीजिंग कि आपका जो हायर नंबर का प्रोसेस है वो लोअर नंबर के प्रोसेस से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए. पप्पू प्रसाद इज ज्वाइनिंग. ओके सो दिस इज द टेक्निक टू ब्रेक द सर्कुलर वेट. ओके नाउ इतना सबको क्लियर है how we can break the mutual exclusion, how we can break the hold and wait, how we can break the सभी को समझ में आ गया. If you have any kind of query or problem let me know. Okay 3 Richa Kumari, Praveen Kumar and Suraj Kumar is trying to join. Okay Shahil Kumar and Apura Mishra is joining. Kunal Kumar is joining. Please respond student. आपको समझ में आ गया what I was talking about? Okay deadlock prevention hold and wait. Team Prakash Gupta. Kindly respond. Did you got all thing which I talked about? How we can break the no preemption? Prem Prakash once again, sir. Suraj Priyadarshi
Which topic, Prem Prakash, you want to have once again? Hold and wait. Once again, hold and wait. Okay. चलिए कुछ लोगों का कहना है कि होल्ड एंड वेट या सर्कुलर वेट उनको फिर से समझना है, तो आई विल क्विकली गो इनटू दैट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. जिनको सर्कुलर वेट को समझना है कि कैसे हम ब्रेक करेंगे सर्कुलर वेट को, तो उनके लिए सिंपल है कि आइदर वी डिमांड द रिक्वेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि अगर आपका कोई प्रोसेस आईडी है P1, वो अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकता है कि P1 P2 से P2 के पास जो रिसोर्स है ना उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, P3 के पास जो रिसोर्स है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये. ओके, बट यहां पे क्या होगा कि आपका जैसे कि सर्कुलर वेट कब होता था, जब हम बैकवर्ड की ओर मूव करते थे. तो अब हम क्या कह रहे हैं. ओके, शिवानी प्रियेश ज्वाइनिंग. ओके, तो बैकवर्ड में नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि आपका सर्कल फॉर्म नहीं होगा. सर्कल फॉर्म नहीं होगा तो आपका सर्कुलर वेट का कंडीशन खत्म हो जाएगा. और उसी तरह से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर होगा तो आपका जो हायर ऑर्डर प्रोसेस आईडी जिनका हायर होगा वो लोअर प्रोसेस आईडी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट वो क्या होगा कि आपका जो लोअर होगा जैसे P2 P4 से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. दिस इज अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हायर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लोअर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है. तो आपका साइकिल का फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा. ओके, किनका क्वेश्चन था ये? आई थिंक ये क्वेश्चन. ओके सर. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है कि अबाउट द होल्ड एंड वेट. तो होल्ड एंड वेट का क्या है कि आप पहले कुछ रिसोर्स आप होल्ड किए हुए हैं और आप किसी और एडिशनल रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है आपको, तो दिस विल बी द होल्ड एंड वेट सिनेरियो. तो होल्ड एंड वेट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था एक मैकेनिज्म कि आप जब भी कोई रिसोर्स के लिए कोई प्रोसेस एंटर कर रहा है सिस्टम में तो उसका सारा रिक्वायरमेंट जो होगा वो सेटिस्फाइड होगा, तभी वो परमिट होगा एंटर करने के लिए. ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रिक्टर वर्जन है कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए तभी आप सिस्टम में एंटर कर सकते हैं. तो ये ज्यादा स्ट्रिक्टर वर्जन है. हम इसको थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रोसेस के पास जितना एलोकेशन था उसके साथ प्रोसेस क्या किया, उसके साथ प्रोसेस सिस्टम में एंटर किया और वो उसको जब एडिशनल रिक्वायरमेंट आया इट मीन्स उसको और रिसोर्स का रिक्वायरमेंट था, तो इसने जो रिसोर्स पहले होल्ड किया हुआ था उन सब रिसोर्स को वो रिलीज कर देगा. तो इससे क्या होगा, इससे ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रोसेस इस पे डिपेंडेंट था कि इस प्रोसेस से हमको रिसोर्स चाहिए तो वो अपना काम कर लेंगे. तो ये क्या होगा, इससे आपका होल्ड एंड वेट का कंडीशन ब्रेक हो जाएगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? प्रेम प्रकाश गुप्ता, डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर. ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर. तो ये तो हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन. ओके, डेडलॉक प्रिवेंशन पूरा डिटेल में आपको बता दिया. नेक्स्ट आता है डेडलॉक अवॉइडेंस. प्रिवेंशन मतलब कहने का ये तरीका कि पहले ही हम ऐसा मेजर ले रहे हैं कि अगर हमारे सिस्टम में कभी वो चीज हो ही ना, अगर वो सिस्टम में आया तो तब भी प्रोसेस अगर मान ले जाए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हमारा क्या हो, कभी वो डेडलॉक ऑकर ही ना हो. और डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है कि हमारा अगर वो सिस्टम में डेडलॉक आ गया या आ सकता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, तब हम उसको कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे रिक्वेस्ट को लेंगे कि डेडलॉक नहीं हो हमारे सिस्टम में. ठीक है, डेडलॉक को अवॉइड करना है हमें. यहाँ पे डायनेमिकली ग्रांट्स ए रिसोर्स
dynamically grants a resource to a process if the resulting state is safe. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें दो स्टेट होते हैं, एक होता है आपका सेफ स्टेट और एक होता है आपका अनसेफ स्टेट। और अनसेफ स्टेट में ही आपका पार्ट होता है डेडलॉक का। ओके, तो आपका डेडलॉक अवॉइडेंस में ये कहा जाता है कि हम तभी रिक्वेस्ट को करेंगे, सक्सेस करेंगे, जब आपका सिस्टम पूरा का पूरा सेफ स्टेट में होगा, क्योंकि सेफ स्टेट में तो कभी डेडलॉक नहीं होगा। जब तक कि अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा तब तक हमारा डेडलॉक नहीं होगा। तो हम जब भी अगर रिसोर्स को प्रोसेस को दे रहे हैं तो देने के पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये देने से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कहीं अनसेफ स्टेट में तो नहीं जा रहा है। अनसेफ स्टेट में जाएगा तो हम उसको एलोकेट करेंगे ही नहीं। तो दिस इज द सिनेरियो कि हम डेडलॉक को अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे? बाय मेकिंग द रिक्वेस्ट in such a fashion that it will always go into the safe state. Okay, so this is the mechanism. और डेडलॉक अवॉइडेंस में ही हम पढ़ते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। बैंकर्स एल्गोरिथम ये मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, अभी तो हम एज अ ग्लिम्स ले रहे हैं। सूरज कुमार इज ट्राइंग टू ज्वाइन। तो बैंकर्स एल्गोरिथम हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, कि हम क्या करेंगे, डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही ये बताया है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है हमारे पास, और उससे हम क्या बनाते हैं, वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस वेट फॉर ग्राफ के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट दैट अ डेडलॉक इज ऑकरिंग इन द सिस्टम और नॉट। और अगर ऑकर हो रहा है तो हम कैसे उसको हटाएंगे, हम प्रोसेस को रिसोर्सेस से रिलीज कराएंगे, हम प्रोसेस को सिस्टम से हटा देंगे, रिसोर्स को हटा देंगे, बहुत मैकेनिज्म होता है। तो ये डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे ताकि ब्रेक हो जाए उसका कंडीशन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपका जो डेडलॉक होता है वो दो वजह से होता है। टू टाइप्स ऑफ डेडलॉक आपके सिस्टम में ऑकर हो सकता है। एक होता है आपका रिसोर्स के कारण डेडलॉक और दूसरा होता है कम्युनिकेशन के कारण डेडलॉक। ओके, रिसोर्स डेडलॉक होता है और कम्युनिकेशन के कारण डेडलॉक होता है। रिसोर्स डेडलॉक जो होता है यूज एंड कंडीशन, ठीक है, यूज करता है एंड कंडीशन को। एंड कंडीशन क्या है, अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स रिसोर्सेस फॉर एग्जीक्यूशन कैन प्रोसीड व्हेन इट हैज एक्वायर्ड ऑल दोज रिसोर्सेस। जितना का रिक्वायरमेंट है, सारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा तब हमारा रिसोर्स, तब हमारा प्रोसेस क्या करेगा, उन रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए कंप्लीट करेगा। ये बात, दिस इज द डेडलॉक ड्यू टू रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन डेडलॉक। इसमें और कंडीशन का यूज किया जाता है, इसमें और कंडीशन का यूज किया जाता है। और कंडीशन क्या है, अ प्रोसेस दैट रिक्वायर रिसोर्सेस फॉर एग्जीक्यूशन कैन प्रोसीड when it has acquired at least one of the resources। यहां क्या था, all of the resources, यहां क्या है, at least one of the resources। तो all मतलब ये क्या हो गया, and at least it means हो गया or। get it? yes student, kindly respond quickly, जल्दी बताइए, समझ में आया? रिसोर्स डेडलॉक एंड यस सर, सुमित, अपूर्वा मिश्रा, ओके, गुड गुड, आशीष कुमार, शुभम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका रिसोर्स के कारण डेडलॉक हो सकता है और कम्युनिकेशन डेडलॉक हो सकता है, दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपका P out of Q condition, which means that process simultaneously request Q resources and remain blocked until it is granted and P of those resources। okay, any P of those resources मतलब एक प्रोसेस है,
प्रोसेस कुछ एडिशनल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसमें क्या हुआ, साइमल्टेनियसली ये क्यू रिक्वेस्ट आया उसके पास। तो उसमें जब उसको पी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगा, रिसोर्स ग्रांट हो जाएगा, तब वो प्रोसीड करेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, बट इसके पहले वाला जो स्लाइड था दैट वाज द इंपॉर्टेंट। एंड और मॉडल क्या है, विच मे सेटिस्फाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और मॉडल। तो ये दिस इज द एंड और मॉडल, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आता है आपका डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन में क्या है, तो आपका डेडलॉक कंडीशन में दो कंडीशन आपका हो सकता है। द कंडीशन फॉर डेडलॉक इन अ सिस्टम यूजिंग द एंड कंडीशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ साइकिल। मतलब कि P1 का रिक्वेस्ट था, P1 का रिक्वेस्ट था कुछ रिसोर्स के लिए, P2 का कुछ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट था, लाइक इन दिस फैशन अगर आपका है, तो दिस इज फॉर्मिंग ए एंड साइकिल, कि मतलब इसके पास कुछ रिसोर्स है एंड इसको ये रिक्वायर्ड है, इसके पास कुछ रिसोर्स है और इसको एंड कुछ रिसोर्स और चाहिए। तो ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। ओके, द कंडीशन फॉर डेडलॉक इन अ सिस्टम यूजिंग द और कंडीशन क्या था, कि एटलीस्ट उसके पास कुछ रिसोर्स था और वो प्रोसीड किया और उसको इसी टाइप से वो बढ़ता चला गया। तो ये आपका और कंडीशन है, और ये क्या करता है, आपका एक नॉट बनाता है। जैसे नॉट आपने देखा होगा, इट इज लाइक अ नॉट, इट कैन बी ओपन। तो आपका यहाँ पे अ नॉट के कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड सच दैट एवरी नोड A in K, all K and only the node K are reachable from a node A. Okay, it is also not very important, but आप ये जान लीजिए कि एंड कंडीशन होता है और कंडीशन होता है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे और कंडीशन को ही एक्सप्लेन किया गया है। और कंडीशन क्या है आपका, तो यहाँ पे नो डेडलॉक है। जैसे कि आपका ये प्रोसेस देखिए, यहाँ पे प्रोसेस P2 के पास गया, ये यहाँ पे ये साइकिल का फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, बट आपका क्या होगा कि अगर यहाँ पे इन दिस सिनेरियो P1 आपका सिर्फ और सिर्फ P2 पे डिपेंडेंट है, P5 आपका सिर्फ और सिर्फ P4 पे डिपेंडेंट है। तो P5 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, P4 को वो रिसोर्स मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि P4 अपना प्रोसीड करने लगेगा और P2 भी प्रोसीड कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1। ओके, सो इन दिस सिनेरियो देयर विल बी नो डेडलॉक। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे P2 का जो रिक्वायरमेंट है, P2 को P3 से भी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे क्या है, P2 पे डिपेंडेंट है आपका P5 एंड P1 आपका डिपेंडेंट है P2 पे, इवन P4 भी डिपेंडेंट है। तो इस केस में डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जा रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ डेडलॉक सिनेरियो। ओके सर, फर्स्ट कंडीशन में तो वही बन रहा है ना? नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फर्स्ट कंडीशन में एडिशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P5 डिपेंडेंट नहीं है P2 पे, P5 आपका P2 पे डिपेंडेंट नहीं है, बट सेकंड कंडीशन में आप जब देखेंगे तो P5 भी आपका P2 पे डिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, तो P2 पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो जा रही है, तो आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी गो इनटू द डेडलॉक सिनेरियो। ये एडिशनल यहाँ पे आपको ये जो एडिशनल डिमांड दिख रही है, ड्यू टू दिस ये आपका क्या हुआ, दिस इज गोइंग इनटू द डेडलॉक। ओके सर। डेडलॉक प्रिवेंशन को मैं पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूं कि डेडलॉक प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। मैं बस यहाँ पे थ्योरी है तो उसको मैं एक बार रीड आउट कर दूं। A process acquires all the needed resources simultaneously before it begins its execution, therefore breaking the hold and wait condition.
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आपका एक प्रोसेस होगा, जब उसके पास सारा का सारा रिसोर्सेस होगा तभी वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इन द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम ईच फिलोसोफर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप बोथ फॉर्क एट द सेम टाइम। इफ ही फेल्स ही हैज टू रिलीज द फॉर्क ही हैज एक्वायर्ड। मतलब कि जैसे आपने डाइनिंग क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में मैंने आपको डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम बताया था। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में एक बात ये थी कि अगर वहां पे अगर हम कंडीशन ये लगा दें कि जो फिलोसोफर होगा दोनों फॉर्क जब तक उसके हाथ में नहीं आएगा तब तक वो प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसके पास सिंगल फॉर्क है तो वो क्या करेगा, उस फॉर्क को भी नीचे रख देगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो डेडलॉक का क्रिएशन हो रहा था मैंने वहां भी आपको बताया था कि ये डेडलॉक में कैसे जाकर के चला जाएगा, तो वो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बट ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक इसका ये होता है कि हम यहाँ पे ओवर कॉशन का यूज करते हैं। मतलब हम ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिस्टम को कि तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर हम ये बोले कि प्रोसेस के पास जब तक सारा रिसोर्स नहीं होगा तो वो एंटर नहीं कर सकता है सिस्टम में, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है ना कि कभी किसी प्रोसेस के पास सारा रिसोर्स हो ही नहीं तो वो कभी सिस्टम में एंटर ही नहीं करेगा। तो दिस विल बी द केस दैट इट इज ओवर प्रोटेक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में ही। ऑल रिसोर्सेस आर असाइंड यूनिक नंबर। अ प्रोसेस may request a resource within a unique number I only if it is not holding a resource with number less than or equal to I and therefore breaking the circular weight condition। ये अभी मैंने जब आपको सर्कुलर वेट को कैसे ब्रेक करना है उसी को ये वर्ड्स में लिखा हुआ है कि हम हर एक प्रोसेस को एक नंबर प्रोवाइड करेंगे और वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज दैट कि हम एक इन्यूमरेशन में रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम क्या करें, सर्कुलर वेट के कंडीशन को ब्रेक कर सकें। ओके, तो यहीं पे डाइनिंग फिलोसोफर को एज अ प्रॉब्लम लिया गया और सॉल्यूशन बताया गया कि जैसे वहां पे हमारे पास क्या होते थे, वी हैव फाइव फिलोसोफर। तो फिलोसोफर वन जो होगा वो वन को पिक कर सकता है, टू को पिक कर सकता है, टू जो होगा वो टू को और थ्री को पिक कर सकता है। इसी तरह से जब फाइव होगा तो वो फाइव को पिक करेगा, बट P6 नहीं है, वहां पे P1 है तो वो P1 को पिक नहीं कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो P5 को भी फिर रिलीज कर देगा। तो आपका क्या जो आपका चॉपस्टिक 5 होगा उसको भी रिलीज कर देगा, तो आपका P4 क्या होगा, आराम से ईट कर सकेगा। तो दिस विल बी द सिचुएशन वेयर वी आर ब्रेकिंग द सर्कुलर वेट कंडीशन। ये भी ओवर कॉन्शियस मेथड है। नेक्स्ट आपका क्या है? ओके, इट इज 2 o'clock. I'm giving you link for today's attendance. Yes, student, kindly fill it up. I have provided you link for today's attendance. Right now, 29 students are here. ओके, कुछ स्टूडेंट का रिस्पांस मिल रहा है।
ओके, 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट का मिल चुका है। चलिए, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। Let's see how many of you have responded. ओके, 17 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया एंड वी हैव 7 मिनट लेफ्ट। चलिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस की तरफ कि व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मतलब कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहता है तो अगर डेडलॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल है तो बैंकर्स एल्गोरिथम, इट मींस डेडलॉक अवॉइडेंस से पूछे जाते हैं। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम हमेशा ये चेक करते हैं कि जो हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, एलोकेशन करेंगे तो हमारा सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या किया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, क्योंकि बैंक, इसको बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है कि बैंक के पास बहुत मनी होता है, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, बहुत ये नहीं कि इन्फिनाइट होता है। इट मीन्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बैंक के पास क्या है, 50 लाख कैश है, ठीक है, अब ये 50 लाख कैश, अब हो सकता है कि वहां से उस बैंक से कुछ लोग लोन लेने के लिए आ जाए, कुछ लोग उसमें कैश डालने के लिए आ जाएं, या और कुछ लोग को हो सकता है अपने अकाउंट से पैसे निकालने हो। तो इन 50 लाख में ही वो कैसे यूटिलाइज करेगा इन सच अ फैशन कि वो कभी प्रॉब्लम में ना आ जाए। अगर मान लिया जाए उसने 50 लाख में पूरा का पूरा 45 लाख लोन ही दे दिया, ठीक है, 45 लाख लोन दे दिया, 5 लाख उसके पास रेस्ट अमाउंट बचा, 5 लाख में मान लिया जाए कोई किसी शॉपकीपर को नीड हुआ और उसका अकाउंट है उस बैंक में, और वो उसे अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आ जाए 7 लाख रुपए, तो हाउ इन दिस सिनेरियो, उसके पास 5 लाख बचा ही है तो वो 7 लाख उसको कैसे दे सकता है। तो ये सिस्टम पहुंच गया आपका अनसेफ स्टेट में। तो दैट्स व्हाई दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द बैंक्स एंड बैंकर्स एल्गोरिथम। तो हम इसी को हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, और इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, और ये डेटा इस प्रकार से होते हैं कि वी हैव रिसोर्सेस और यहां पे 4 रिसोर्स है आपका ए बी सी डी। इट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स, मतलब कि ये टाइप है कि ए एक टाइप का रिसोर्स है, बी दूसरे टाइप का है, सी डी, ये 4 टाइप के रिसोर्स है। और अब देखिए इनिशियली सिस्टम के पास ए हैज 6 इंस्टेंस, बी हैज 3 इंस्टेंस, सी हैज 4 इंस्टेंस एंड डी हैज 2 इंस्टेंस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए का कितना था 6, बी का कितना था 3, सी का कितना है 4 और डी का कितना है 2। अब देखिए एलोकेशन, अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स होता है, जब इसका कोडिंग भी आपको करना पड़ेगा इन सी प्लस प्लस, लैब में आप करेंगे। तो क्या होता है, वी हैव प्रोसेस P1 P2 P3, इस टाइप से प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एंड वी हैव अ मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कि क्या होते हैं, n नंबर ऑफ रोज होता है और 1 कॉलम होता है। ये प्रोसेस मैट्रिक्स है, n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है एलोकेशन मैट्रिक्स। एलोकेशन मैट्रिक्स का साइज जो होता है वो n क्रॉस नंबर ऑफ या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस होता है। जैसे यहां पे हमारे पास 4 टाइप का रिसोर्स है, तो 4
इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है 5, तो 5x4 का एक एलोकेशन मैट्रिक्स होगा। ओके, और इस एलोकेशन मैट्रिक्स में ये होता है कि हमने इतना एलोकेट कर दिया है, इतना एलोकेट कर दिया है, मतलब कि ए का 3 इंस्टेंस P1 को एलोकेटेड है, सी का एक इंस्टेंस, डी का एक इंस्टेंस P1 को एलोकेटेड है। ओके, तो ये इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस इस एलोकेशन मैट्रिक्स का मतलब है उनके पास है। नेक्स्ट P2 का एलोकेशन मैट्रिक्स ये है, तो इट मींस दे आर होल्डिंग दिस मच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग रिसोर्सेस कितना है, और उसको हम कहते हैं एज अ अवेलेबल मैट्रिक्स, एज अ अवेलेबल मैट्रिक्स। अवेलेबल मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये रहा हमारा इनिशियल, तो ए का कितना हमने एलोकेट कर दिया, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया 5, 6 - 5 कितना हो गया, 6 - 5 कितना हो गया स्टूडेंट 1। अब देखिए बी का 1 + 1 + 1 इंस्टेंस है, 3 इंस्टेंस पहले था और 3 हमने एलोकेट कर दिया, बचा कितना 0, 1 1। ओके, तो 2 हो गए इधर से, 4 - 2 दिस विल बिकम 2। अब डी के बारे में 1 और 1, तो 2 था, 2 एलोकेट हो गया, तो अवेलेबल कितना हो गया 0। तो ये अवेलेबल मैट्रिक्स हो गया। अवेलेबल मैट्रिक्स का साइज कितना होता है, तो साइज होता है 1 क्रॉस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक इसमें नीड मैट्रिक्स निकालते हैं। नीड मैट्रिक्स का भी साइज होता है n क्रॉस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब अब हर एक प्रोसेस को कितना नीड होगा, कितना और नीड है उसको फर्दर प्रोसीड करने का, तो ये हम नीड मैट्रिक्स में निकालते हैं। मैक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में उसको कितना का नीड था। ओके, मैक्सिमम डिमांड कितना था वो हमारा मैक्स मैट्रिक्स में होता है। तो मैक्सिमम डिमांड P1 का था कि उसको 4 इंस्टेंस चाहिए था, आपका ए का, एक इंस्टेंस बी का, एक इंस्टेंस सी का, एक इंस्टेंस डी का। ओके ओके, टाइम होने वाला है स्टूडेंट, वी विल कम इनटू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। हम यहीं से पिक करेंगे, हम बैंकर्स एल्गोरिथम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, क्या सभी को सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज लेट मी नो, समझ में आया या नहीं? काइंडली। यस सर। यस सर। ओके ओके, क्लियर है, ओके क्लियर है, यस सर यस सर। ओके ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम of deadlock avoidance using the Banker's algorithm. Okay, thank you student, have a nice day.